ಎಸ್, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ವಿಶಾಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇವಯಾನಿ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅಕ್ಕ. ಕಲ್ಪನಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ನಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇದ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ. ಈಗ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ಗೀಗ ಆ ತರ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರದ್ದು ಮುಂದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ಗೆ. ಅದೊಂದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸಾರಿನೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಂದ್ರೆ, ಅಶೋಭಯ್ಯ ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದು ಸೆಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಜೀವನಕ್ಕೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೇನೋ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ಗೇನಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ ನನ್ಗೆ. ಆತರ ಅವ್ರದ್ದು ಡೌಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಸೀಬದ್ ಇದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 1-2 ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು 4 ಮುಗಿಸಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುಗಿಸಿದೀರಾ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಕಲಿಯಿರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆವೆಲ್ ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗೀತಾ ಪರಿವಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಿ. ಓಕೆ, ವೀಣಾ HP ಅವರೇ. ನಾನು ವೀಣಾ HP ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರೇನಾದ್ರೂ ಎತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವವಳು. ಈ ಗೀತಾ ತರಗತಿಯು ನನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಆ ಜನರೇಷನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನೀಗ ನನ್ನದು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ 60 years ಆದವರೇ ಇರುದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಈ ಗೀತೆ ಕಲ್ತವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಬಾಕಿದ್ದವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ 1ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಣಾ ಭಟ್ ಅವರು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣೆ ಬದಲು ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ನುಡಿ ಹೇಳಿ. ಸಖಾ माझा ज्ञानेश्वर, सखा माझा ज्ञानेश्वर, विष्णुजा अवतार, विष्णुजा अवतार, सखा माझा ज्ञानेश्वर, सखा माझा ज्ञानेश्वर, चला जाऊ अलंकापुरा, चला जाऊ अलंकापुरा, संत जनांच्या माहेरा, संत जनांच्या माहेरा, विष्णु
अवतार विष्णूचा अवतार सखा माझ्या ज्ञानेश्वर स्नान करिता इंद्रायणी स्नान करिता इंद्रायणी मुक्ती लागली चरणी चरणी ज्ञानेश्वरांच्या चरणी चरणी ज्ञानेश्वराच्या चरणी चरणी सेनाला लोटांगणी सेनाला लोटांगणी विष्णूच्या अवतार विष्णूच्या अवतार सखा माझ्या ज्ञानेश्वर सखा माझ्या ज्ञानेश्वर. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮರಾಠಿ. ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವಯಾನಿ ಅಕ್ಕ, ವಿಶಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ದೇವಯಾನಿ ಅಕ್ಕ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನೇನ ಜೀವನಂ ದೇಹಾಂತ ತವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು, ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ದುಃಖದಿಂದ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ನಡೆದಾಡುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೆಂದಿಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಇರಬಾರದು. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ನಾವು ಸಾವು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಓ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಅಂತಹ ವರವನ್ನೇ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕ. ನನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ. ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ದೇವಯಾನಿ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಓಕೆನಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿಶಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಂಗಾಳೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಂಗಾಳೆ, ಹುಬ್ಳಿ ನವನಗರದಿಂದ. ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷತಾ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಅಕ್ಕ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಮರಾಠಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. जुळजुळ वाहे पुण्य जळाचा निर्झर हो, निर्झर हो. श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर ओझर हो, ओझर हो. गणरायाला विघ्नासुर हे शरण जिथे, गणरायाला विघ्नासुर हे शरण जिथे. भक्त जनाला बळदावील का मरण तिथे, मरण तिथे. हे विघ्नेश्वर शरण दयेचे पाझर हो, पाझर हो. श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर ओझर हो,
ओझर हो. संध्या अಕ್ಕ. कृष्ण शिळेचा मूषक धावे धाराशी, कृष्ण शिळेचा मूषक धावे धाराशी, तैसा पळती भक्तांचा संकट राशी, संकट राशी. भव्य चिरांचे मंदिर हे चिर सुंदर हो, सुंदर हो. श्री विघ्नेश्वर शरण जयचे पाझर हो, पाझर हो. जुळजुळ वाहे पुण्य जळाचा निर्झर हो, निर्झर हो. श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर ओझर हो, ओझर हो, ओझर हो. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರೇ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡ್ಬರ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶುಭಯ್ಯ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. समझ में इसीलिए हिंदी में बोलती हूँ. प्रणाम भैया, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में. उन्होंने अभी जो साधक गा रहे थे उन्होंने बोला ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब गा रही थी तब भैया आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. इससे पहले एक दीदी ने बोला, कल्पना जी, अभी उनको जरूर बोलने का मौका देंगे हम. उन्होंने बोला कि वो आपके अर्थ विवेचन सत्र सुनते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन होता है वो उन्हें बहुत पसंद है. उन्हें ऐसे लगता है कि हर एक क्वेश्चन उनके लिए ही कोई पूछ रहा है और आप उनके लिए ही वो आंसर बता रहे हैं. तो वो आपके अर्थ विवेचन सुनते हैं ऐसा अभी उन्होंने बोला. और उन्होंने बोला कि अगर मैं तो रुक रही हूँ, उनके दर्शनों के लिए मैं रुक रही हूँ, अगर वो आ गए तो मुझे ऐसे लगेगा कि परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन मैंने कर लिए. ऐसे उन्होंने अभी बोला था 10 मिनट पहले. आप आए, हमें बहुत 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 खुशी है भैया. ಭಯ್ಯ के बारे में ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶು ಭಯ್ಯ ಗೋಯಲ್ ಗೀತಾ ಪರಿವಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೀತಾ ಪರಿವಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಯಾಕಾಗ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ भैया से अगर आपको कुछ अपने अनुभव साझा करने हो तो जरूर हैंड रेस कीजिएगा. जिनको भी हिंदी या इंग्लिश में बोलना है तो जरूर. अगर कन्नड़ में बोल सकते हैं तो ठीक है, बोलिए, हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे. इट विल बी बेटर इफ यू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ದೀದಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಅಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने क्लास में आए. तो मैं हर अध्याय का मैं आपका जो भी सेशन अर्थ विवेचन है वो मैं देख चुकी हूँ. हमेशा देखती हूँ, बार बार देखती हूँ. अगर मैं कन्नड़ में मैं सीखती हूँ क्योंकि कन्नड़ भी मेरा मदर टंग है, लेकिन मैं मुंबई में आके मैं 25 साल हो गया तो मैं हिंदी में ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ. इसके लिए कविता दीदी का रहने दो, आपका रहने दो. मैं अल्टरनेटिव जो भी मोबाइल मिलता है, पहला हम लोग देखते थे वीडियो में वो देखो ये देखो. अभी ऐसा नहीं लगता. वीडियो मोबाइल खोलते, हाँ भगवत गीता में आज क्या है, चलो वो देखते हैं आज. और दीदी हमको इतना अच्छा सा भगवत गीता एक ग्रंथ है इतना ही हमको मालूम था, लेकिन न्यास विथ न्यास हमको पारायण करने के लिए न्यास जरूरी होता है. विदाउट न्यास हम लोग नहीं कर पाते. लेकिन उसके साथ जो इतना आघात के साथ ग्रामर के साथ हमको इतना क्लियरली ना डाउट ही नहीं रहा. हमको इतना अच्छा सा हमारा सेशन हुआ है और मुझे इतना खुशी है कि मैं 18 अध्याय कंप्लीट किया. और मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, बताना बहुत कुछ है मुझे, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है ना आई कांट स्पीक. मुझे मैं वो फील ही शेयर ही नहीं कर पाया. और मुझे नहीं लगा था कि आपके साथ मैं ऐसे मैं बात करूंगी करके. मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा है भैया. बहुत खुश हूँ आज मैं. और श्रुति दीदी, अक्षता दीदी का मैं बहुत ये एक जरिया बन गया मुझे आशु दीदी तक पहुंचाने के लिए. इसके वजह से मैं आप दोनों के भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. मेरा इतना इस सब गूज़बम्स आ रहे हैं कि उनके साथ बात करने. भैया आपके सभी बहुत फैन फॉलोवर्स हैं कन्नड़ में भी. बहुत लोग आपका विवेचन सुनते हैं. आपसे मिलने के लिए बड़े ललायत थे. आपको देख के सभी बहुत खुश हैं. सुधा भटौरे हेली. हाँ, आशु भैया नमस्ते.
Namaste. I'm actually speaking from all the way from Nigeria, Africa, Oh. Lagos. So it is excellent that you could get us to learn Gita through Zoom all over the world, in spite of not being in India. So especially we have in Hindi as well as English, and especially the Artha Vivechana is so good. Like some of the doubts we have when we talk with friends, we have nothing to say because we are not very sure of what we talk. But then the way you clarify, and some people ask doubts and you tell us, so a lot of things, even what doubts we have in our mind, clarified with that. I'm going to continue listening to all your lectures as well as the question answer session, even after I finish the fourth level also. Thank you so much. It was wonderful. All the way from Nigeria, Lagos. Thank you. Very I'm nice. lucky. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ವೀಣಾ ಭಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. जय श्री कृष्ण आशु भैया जी. जय श्री कृष्ण आशु भैया जी. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मैं आपका विवेचन सत्र हर बार सुनती हूँ. मुझे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है. जब भी नेटवर्क ठीक से आता है आपका विवेचन सत्र कभी भी हो, वो 6 बजे हो, 5 बजे हो, 10 बजे हो. इवन जापान में आपने 2-3 ऐसा जूम मीटिंग करवाया था हमारा प्रधानमंत्री इनका प्रेरणा से. वो भी सुबह 7 बजे था. कंटिन्यूस 3 क्लासेस मैंने जब भी नेटवर्क ठीक था सुना. मुझे ऐसा लगा कि जैसा श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कौन सा भी क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसको समाधान दिया है, वैसा ही आप मालूम नहीं कृष्ण परमात्मा आपके रूप से हमें कुछ भी प्रश्न विवेचन सत्र में हम पूछते हैं, आपके पास उसके पास हमें एक कॉन्फिडेंस देने वाला और एक तसल्ली होने वाला, हमें बहुत प्रिय होने वाला आंसर आप देते हैं. बहुत खुश है, बहुत आपसे बहुत खुश है. जय श्री कृष्ण. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀದಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. JC ಭಯ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Didi, Ashu Bhaiya has come and we are very happy that he has come, and Ashu Bhaiya, we used to see him on this one, Vivechan and other things. See, I am seeing the participants more than 70 after 2.5 hours. So it's such a interesting, and people are sharing. उत्सव है ना, आनंद उत्सव, तो कौन छोड़ के जाना चाहता है? हाँ भैया, हमने 2:20 को शुरू किया था. ये हमारा चौथा सेशन चल रहा है, लेकिन सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग बड़े उत्साह में हैं. उनका L4 का आनंदोत्सव है और उनका उत्साह, उनका जो आनंद है वो अभी तो बहुत मतलब दुगना हो गया. ज्योति दीदी आए थे और अभी आप पधारे हैं, हमें बहुत खुशी है जी. डॉक्टर अरुण कुलकर्णी. We are very happy, Bhaiya, you have come to our Anandotsav. Thank you bhai. ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಅರುಣ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. दीदी ಅವ್ರದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮತಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಆಶು ಭಯ್ಯ. ಹಾ ಹೇಳಿ. It's pleasure to have you here with us. It's a great pleasure indeed. This is Sumati Murugesh from Bangalore. Just I would like to put forth a point. What I observed is, while like we learn Gita only after cross certain age, so after cross the middle age only we learn what is Gita, how many slokas in there. So this thing should change. Then in compared to other religion, in other great religions, they start learning, they make it compulsory to start learning it from childhood itself. So in our Hindu this thing also, I like to start it from, we should take efforts to make it start from childhood, our childhood. Right. So then the children can adapt these things. They can lead better life by learning these techniques and all. So this thing I want to put forth with you, as you are in the top post of the Gita Parivar. Then by learning this Bhagavad Gita, what I learned is, I learned to excuse people. It lessened my anger. I learned to excuse a lot. Then I started leading a disciplinary life. So I am finding this thing, what purpose of my life, I think, what I feel.
So nice. thank you very much. Thank you very much. I don't want to take much time. Thank you very much. Very nice. Thank you. भैया आप बोलिए क्योंकि नहीं, वो मुझे तो एक दो लोगों को कहने दीजिए फिर। ओके ओके भैया ओके गुरुपाद अडिगे ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अशुभ भैया जय श्री कृष्ण। मैं तो अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं कन्नड़ में मतलब क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं अभी तक का मेरा सफर बहुत अच्छा है। और मैंने अभी ये किताब भी लिया है गीता परिवार का, बट मैंने एक देखा है उसमें एक्चुअली अपने सिर्फ कन्नड़ का दिया हुआ है। मेरा सुझाव है उसके संस्कृत का भी श्लोक उसके नीचे कन्नड़ रहता है ना, जैसा हमारा क्लास में देता है ना, चलेगा सर। उसमें से एक्चुअली क्या है, उसमें से हमको क्या है करेक्ट मीनिंग आ सकता है सर। हाँ, और दूसरा क्या है, इसमें न्यास भी ऐड किया ना आप, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पारायण करने के लिए न्यास जरूरी है करके बताया है, लेकिन वो तो नहीं है सर, अभी आज ही आया है एक्चुअली बुक। न्यास आवश्यक है ऐसी बात नहीं है, न्यास कर सकते हैं जिसको सकाम अनुष्ठान करना हो उसके लिए न्यास आवश्यक बात है। सिर्फ भक्ति भाव से करना है तो न्यास आवश्यक नहीं है, इसलिए हमने उसको रखा नहीं है। आगे हम मूल पाठ की अलग से पुस्तक बनाएंगे छोटी, उसमें हम न्यास भी रखेंगे, ऐसा विचार है। नहीं, संस्कृत में अभी किया हुआ उसमें है क्या, संस्कृत का है क्या बुक? नहीं, हिंदी का भी है तो उसमें सेम ही है, न्यास किसी में भी नहीं है अभी। किसी में भी नहीं है? अच्छा, मैं है तो मैं संस्कृत मंगाने सोच रहा था अभी। नहीं, हिंदी का, मराठी का और कन्नड़ का है, तीनों सेम है, खाली भाषा का अंतर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कन्नड़ का मैंने आज ही आया एक्चुअली, आज ही पार्सल आया। मैंने कन्नड़ का भी मेरा मैसेज आया था। संस्कृत का और कन्नड़ दोनों करेंगे तो पुस्तक 144 के बजाय 288 पन्ने की हो जाएगी, बड़ी मोटी हो जाएगी, दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, 200 रुपया करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अच्छा है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना साहब। आगे मूल पाठ की छोटी पुस्तक बनाएंगे, उसमें दोनों करेंगे, देखेंगे। मूल पाठ का हाँ किया तो अच्छा है। धन्यवाद। और ये सर क्लासेस तो बहुत अच्छा चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ये ही है। हमको एक्चुअली हमारा एक्चुअली कोरोना का वजह से हमको एक अच्छा मौका मिला है हमको, दैट इज ऑनलाइन सीखने का। बहुत सारा मतलब अभी संस्कृत का भी मैंने क्लासेस अटेंड किया हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरा रिटायर होने के बाद आई एम वेरी बिजी विथ ऑल दीज थिंग्स। वेरी नाइस। धन्यवाद। गीता परिवार के लिए मेरा शत प्रणाम। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट अनम्यूट ಮಾಡಿ ಉಮಾ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು। ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ಭಯಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ದೀದಿ, ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಯ್ಯಾಗೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಆ ಫಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತೆ, ವಾವ್ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ದೀದಿ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ದೀದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ? ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೌದು, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. नमस्ते आशु जी, आशु भैया जी। मैं कर्नाटक में हूँ। कर्नाटक में एक प्राध्यापक हो गया था, अभी रिटायर हो गया हूँ। थोड़ा हिंदी ज्यादा बोलना आता नहीं। आई एम कंफर्टेबल विथ इंग्लिश। So India is a very big country having many religions, okay, and in this Bhagavad Gita is the only book that we can see is common for all, and this Gita Parivar is doing a wonderful job, and that too free of cost. So that is a wonderful thing.
I learned many Vedas and other things by paying more money, but I learned Gita without any payment, and that is telling us about the service motto that you have. Okay, inspired by this, I am also joining the calling and migration department. Last time I worked in that, and I continue to work in this Gita Parivar. Thank you one and all for the Gita Parivar. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸತೀಶ ಭಟ್ ಅವರು, ನೀವು ಸತೀಶ ಭಟ್ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಜಿ ಭಯ್ಯ ಬೋಲಿಯೇ, ಬೋಲಿಯೇ ಭಯ್ಯ. अभी म्यूट कर दे सबका. ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರು. ದೀದಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಶು ಭಯ್ಯನ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ. ಹಾ ಸರ್. सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम वंदन करता हूँ. मैं आप सबके दर्शन करने की इच्छा से यहाँ पे आया हूँ. इतने सारे गीता के यात्रा पूरा करने वाले जो गीता प्रेमी साधक है, उन सब के दर्शनों का एक साथ पुण्य मिलने से मुझे बहुत लाभ होगा. इस स्वार्थ दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है. तो आप सबके दर्शन करूंगा तो मेरे पुण्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सबने 1 वर्ष तक सतत गीता जी की साधना की है, उसका पारायण किया है, उसको सीखने का, उसको आत्मसात करने का प्रयास किया है. ये अद्भुत बात है और ये हमारे जीवन को बदल देने वाली घटना है. हम सब ने अपने जीवन में अलग अलग उपलब्धियां पाई है. हम घर गृहस्थी का काम भी करते हैं, कोई नौकरी भी करता है, कोई व्यापार करता है. ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम सबको ये ध्यान में आता है कि उनका जो उपलब्धि है, उनका जो लाभ है, वो एक सीमित है. उसके बाद उसकी कोई उपलब्धता हमको कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद ध्यान में रहती नहीं है. लेकिन ये जो गीता जी सीख ली है, इसका लाभ तो जन्म जन्मांतर का लाभ है. पूर्व जन्मों के कितने पाप कट गए और आने वाले कितने जन्म सुधर गए, हमको तो पता भी नहीं. ये जीवन तो सफल हुआ, आगे के पीछे के भी जीवन सफल हो गए. ऐसी बड़ी उपलब्धि गीता जी के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में आ गई. कितना बड़ा लाभ हमको जीवन में ऐसे घर बैठे स्वतः भगवान की कृपा से, पूज्य स्वामी जी महाराज के ऐसे श्रेष्ठ संतों की कृपा से हो गया. कोई नाइजीरिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, और कोई कर्नाटक में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, और सब लोग एकत्र होकर एक स्थान पर सीखते हैं. अच्छे लोगों का समूह हो जाता है. इतने सारे अच्छे एक सम विचार वाले साधकों को एकत्र करके एक स्थान पे लाना, उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो पुण्य है. इतने सारे गीता सेवी, श्रुति दीदी जैसे इतने बढ़िया हमारे प्रशिक्षक, हमारे टेक्निकल सहायक, हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर, बैच कोऑर्डिनेटर आदि इतने सारी सेवाएं देने वाले इतने उत्तम गीता के सेवी, इनका सानिध्य मिलना, इनका साथ मिलना, ये अपने आप को जीवन को बदल देने वाला है. इसको हमने खूब लाभ उठाया है. मेरी तो एक ही प्रार्थना होती है, जहां पर भी मैं जाता हूँ एक ही प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि आप ये मत मानना कि आपकी यात्रा पूरी हो गई. 4 धाम की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ है, अभी तो 18 पड़ाव करने हैं. आप फिर से जैसे ही ये क्लास पूरी हुई, वापस L1 से L4 के किसी ग्रुप में जुड़ जाना और ये यात्रा चलते रहने देना. अब जब तक ये जीवन है तब तक सीखते रहना, इसमें जुड़े रहना, कुछ करते रहना. रोज के 40 मिनट मेरे गीता जी में जो लग रहे हैं वो रुकने नहीं चाहिए. इससे बढ़िया हो क्या सकता है, इससे आसान हो क्या सकता है, इससे सुलभ, इससे सहज हमारे लिए हो क्या सकता है. आप कितनी बार भी सीखेंगे, गीता परिवार आपकी सेवा में सतत इसी प्रकार से निःशुल्क उपलब्ध रहेगा. इतने सारे गीता सेवी इस काम को लेकर चल रहे हैं, वो भी दिनों दिन इस काम में और अपना समय लगाते जा रहे हैं, और अपनी सेवा करते जा रहे हैं. तो हम सब लोगों को ये निःशुल्क उपलब्ध है, घर बैठे उपलब्ध है, अपने समय पर अपनी सुविधा से उपलब्ध है. इसलिए अभी गीता क्लास हमारे जीवन से छूटे नहीं, ऐसा हम लोग प्रयास करें. दूसरी बात, 18 तारीख को आओ गीता सेवी बने कार्यक्रम है, तो हम सब लोगों को उस कार्यक्रम में आना चाहिए. अभी तक हम में से जो लोग किसी भी सेवा में जुड़े, किसी ने भैया ने कहा कि मैं कॉलिंग सेवा में जुड़ा हूँ, तो हम सब लोगों को किसी एक सेवा में जुड़ जाना चाहिए. क्योंकि कॉलिंग सेवा यानी टेलीफोन कॉल करके नए लोगों को जोड़ना, कोई लोग नहीं आगे जा पा रहे उनको समझाना, कोई कहता मैं तो व्यस्त हूँ, क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कुछ प्रेरणा करना. अब ये हम में कौन नहीं कर सकता, सभी लोग कर सकते हैं. कोई विवेचन लिख सकता है, कोई ट्रांसलेशन कर सकता है, कोई अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम कर सकता है. तो किसी प्रकार से हम लोग को गीता सेवा के काम में जुड़ना चाहिए. एक और सेवा हमने कल ही स्टार्ट की है, अभी उसके बारे में कहीं आया नहीं. मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको एक अर्ली बर्ड बेनिफिट बोलते हैं ना, तो वैसा लाभ हो जाएगा. एक नई सेवा हम लोग आरंभ कर रहे हैं कि जो गीता जी की पुस्तक की बात अभी हम लोग ने करी, ये कन्नड़ में इतना सुंदर प्रकाशन हो गया है,
ये पुस्तक तो बन गई, लेकिन सब लोग ऑनलाइन पुस्तक खरीद नहीं पाते, सबको ऑनलाइन पेमेंट आदि करना आता नहीं है, सब मुश्किल है। तो इसके ऑफलाइन सेंटर्स बनाए जाए। तो हम लोग अपने घर पर, दुकान पर, स्टोर पर, जहां हमारी ऑफिस में उपलब्धता है, हम गीता जी का एक ऑफलाइन स्टोर बना दे और वहां पर ये पुस्तकें उपलब्ध हो, जो लोग लेना चाहे वो आके ले सके, ऐसी हम सुविधा करना चाहते हैं। तो गीता परिवार का ऑफलाइन बुक सेंटर करके हम लोग एक नई योजना शुरू कर रहे हैं। उसमें 50 पुस्तकों का ऑर्डर आपको करना होगा, 5-7 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको अपने पास से करनी होगी और फिर आप उसको सुलभता से सबको उपलब्ध करा सकेंगे। आप जब ये करेंगे और आपके स्टोर, आपका रजिस्ट्रेशन स्टोर के रूप में हो जाएगा, तो उस स्टोर का नाम लिस्ट में प्रकाशित हो जाएगा। तो मेरे पिन कोड के सबसे नजदीक स्टोर कौन सा है, ये साधक सर्च करके वहां से जाकर ये गीता की पुस्तक उतने ही मूल्य में प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा। 50 पुस्तक लेने पर ये बिना शुल्क के आपके पास पहुंच जाएगी। 5 पुस्तकें उपहार रूप में आती है, बैनर आता है, पंपलेट आता है, पोस्टर आते हैं साथ में, वो अलग लाभ है। तो 50 पुस्तकों का ऑर्डर जो लोग कर सकते हैं, 5-7 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अपने घर पे इस प्रकार की उपलब्धता कर सकते हो, वो इस सेवा से जोड़ सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी ये कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम यूजर लिंक मिल रहा है आपको, तो ये अच्छा है। तो जो लोग इस सेवा से जुड़ना चाहते हो, इस प्रकार का भी कुछ काम करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। जो कर सकते हो करे। नाइजीरिया में भी एक सेंटर बने तो और अच्छी बात, वहाँ पे उसके डॉलर के दाम निश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक 50 पुस्तकें हिंदी, मराठी, कन्नड़, हार्ड कवर, पेपरबैक सब मिलाकर, जहाँ पर हमारे जैसे साधकों की उपलब्धता होगी, मांग होगी, वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमको करना चाहिए। एक सूत्र ऐसा है, स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि जहां तन जाता है, यहाँ धन जाता है, वहां हमारा मन अपने आप चला जाता है। तो सेवा में तन लगाओ या धन लगाओ तो मन अपने आप जुड़ जाता है, और तन और धन दोनों लगा दिए तो मन बिल्कुल जोर से जुड़ जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से मेरा कुछ धन भी लगे, मेरा कुछ तन लगे, तो मेरा मन अपने आप भगवान के कार्य से, भगवान से जुड़ता है। इसलिए हम सबको किसी न किसी प्रकार से सेवा में आहूत हो जाना चाहिए। तीसरी बात, कंठस्थीकरण का प्रयास आरंभ करना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने कुछ भी कंठस्थ नहीं किया होगा, उनको भी कुछ कुछ प्रयास आरंभ करना चाहिए। गीता जी कंठस्थ करने से वो गीता जी अपनी हो जाती है। जब तक इस पुस्तक में गीता जी है, तब तक इस पुस्तक में है, लेकिन जब मैं उसको कंठस्थ कर लेता हूँ, तब वो मुखस्थ हृदयस्थ होकर मेरी अपनी हो जाती है। फिर मुझे इस पुस्तक की दरकार नहीं रहती। कभी किसी कारण से पुस्तक नहीं रही, मैं देखने लायक नहीं रहा, सुनने लायक नहीं रहा, पढ़ने लायक नहीं रहा, ऐसी अवस्था हो गई, कोई कोमा में चला गया, कभी पता नहीं किसी की, भगवान की क्या हमारे साथ प्रारब्ध की घटना घट जाए, उस समय में गीता की कंठस्थ की हुई बात हमारे अंदर है। हमको किसी बात की दरकार नहीं है, हमको सुनता नहीं है, दिखता नहीं है, तो भी हम अंदर से गीता जी का पारायण कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए गीता जी को कंठस्थ करने का भी कुछ कुछ प्रयास हम लोगों को आरंभ जरूर कर देना चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि गीता को जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको अब अपने जीवन को बदलना आना चाहिए। बहुत हो गया, हम हो गए 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, अब ये मूर्ति बदलनी चाहिए, वैसे ही नहीं रहनी चाहिए। अब उस मूर्ति में प्रेम आना चाहिए, इस मूर्ति में उदारता आनी चाहिए, इस मूर्ति में आनंद आना चाहिए। हम सदैव प्रसन्न रहना सीखे, हम लोगों को देना सीखे। बात बात पे नाराज होना, बात बात पे उदास हो जाना, कुछ मन की नहीं घटे तो एकदम मूड ऑफ हो जाना, अब ये बातें बदलनी चाहिए। अब मैं पहले जैसा उदास नहीं होता, पहले जैसा नाराज नहीं होता, लोगों को क्षमा करना सीखता हूँ। अभी दीदी ने कहा, बड़ी सुंदर बात है, मैं दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होना सीखूं। अरे मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे आसपास के लोग प्रसन्न होते हैं, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इतनी अधिक प्रसन्नता जीवन में हो जाएगी कि आपको अप्रसन्न होने का समय ही नहीं मिलेगा, अवकाश ही नहीं मिलेगा। इसलिए अब मेरे जीवन में गीता के सूत्र घटने चाहिए, सेवा जुड़नी चाहिए, साधना जुड़नी चाहिए, भक्ति मेरी बढ़नी चाहिए। इस प्रकार के बदलाव मेरे जीवन में कुछ घटने चाहिए। तो आप सभी इस प्रकार से इस सेवाओं से जुड़े अपने जीवन में गीता जी को लाएं और हम दीर्घ काल तक सहपाठी रहकर गीता जी का सहवास करते हुए अपने जीवन को आनंद मंगल करें और जन्म जन्मांतर तक अपना कल्याण करने को तत्पर हो जाए। ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हुआ आप सबको पुनः वंदन करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके आशीर्वचनों के लिए कृतार्थ हो गए हम। बहुत सब लोग बहुत खुश हैं, आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। और हमारी जो टेक दीदी है अक्षता BSK जी, वो दुबई से है। हमारा और उनका टाइम जोन अलग है, लेकिन मई से आज तक एक भी दिन, एक भी मिनट उन्होंने कभी लेट नहीं किया। ये जो टाइम सेंस है, समय प्रज्ञा जिसे हम बोलते हैं, वो हम सब ने
यहाँ आकर ही सीखा है, नहीं तो हम लोग अक्षता दीदी आपको एक अच्छी सूचना देता हूँ। 25 दिसंबर को हमारे आदरणीय संजय भैया दुबई आ रहे हैं और मैंने सूरज भैया से कहा है कि शाम को वहाँ के दुबई के अपने जो कार्यकर्ता बंधु मुख्य हैं उनके साथ संजय भैया की एक मीटिंग रखे और मार्च में गीता मैत्री दुबई का आयोजन करें, गीता मैत्री यूएई का। तो उसकी प्लानिंग के लिए आप लोग 25 दिसंबर को, हाँ 23 दिसंबर है शायद है, मैं 23 दिसंबर को संजय भैया 23 से 25 है वहां पर, तो 23 या 24 को मिलने का समय हो जाएगा। तो सूरज भैया से आपका संपर्क हो गई तो आप कोऑर्डिनेट करके सब लोग वहां पर संजय भैया से मिले और मार्च में गीता मैत्री यूएई का आयोजन, बृहद आयोजन हो और हजारों साधक गल्फ के इकट्ठा हो वहां पर, एक डंका बजे अरब भूमि पर गीता जी का, ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। तो अभी बीच में बात ध्यान आ गई तो श्रुति दीदी आपकी बात रोक कर मैंने बात कह दी। नहीं, बहुत अच्छा हुआ भैया आपने बोला, बहुत अच्छा। उनको लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है अक्षता दीदी के लिए, वो तो अभी फटक से काम में जुड़ जाएंगी, वो बहुत ही एक्टिव है। और ये कन्नड़ ग्रुप है तो बेंगलोर के बहुत सारे साधक होंगे, तो 8 जनवरी को गीता मैत्री बेंगलोर भी हो रहा है और बेंगलोर में हमारे आदरणीय संजय भैया पधारे हैं और आप सब उस कार्यक्रम में जरूर बेंगलोर में जुड़ सकते हैं। अभी उसके इंटीमेशन आपके ग्रुप में आ जाएंगे तो ग्रुप छोड़ना नहीं। आप एक बात ध्यान रखना कि गीता परिवार के किसी न किसी ग्रुप में जुड़े रहना। अभी आपको गीता साधक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा तो उसमें तो आप रहेंगे, बाकी L1 से L4 के किसी ग्रुप में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमको गीता परिवार की एक्टिविटीज की सूचना मिलती रहे, इसके लिए हमारा करेक्शन छूट ना जाए, ये आप सब ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। यस बिल्कुल भैया, बिल्कुल। उन्हें बोला है कि कोई ग्रुप ना छोड़े और ये ग्रुप में वो लोग बने रहें, उन्हें आगे यहाँ पे और सारे सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे साथ गीता स्टोर के बारे में भी आपने शेयर किया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ये लिंक हमारे साथ शेयर हुआ है, बहुत खुशी हुई बहुत बहुत धन्यवाद। ये योजना कल ही बनाई है और अभी तक इसका फॉर्म कहीं गया नहीं है, अभी हम बना ही रहे थे, उसको फाइनल कर रहे थे, अभी जाना शुरू होगा, तो मुझे लगा मैं आया ही हूँ तो यहाँ पर कुछ नई बात हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री कृष्ण भैया। थैंक यू सो मच भैया। जीसी भैया ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? Thank you, Ashu Bhaiya, for coming and blessing all of us. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you. Didi, 2 minutes, 1 minute. I would like to take your leave now. If it is. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। श्रुति 2 जो है वो मेरी बेटी है, मेरी माँ के ऑफिस में है, ताकि आनंदोत्सव में वो डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मम्मी उसे ऑफिस लेकर गई है, तो वो वहां से तो उसका नाम श्रुति थोड़ी, उसका नाम क्या है? तोषिणी, गोपी है भैया, गोपी। हाँ गोपी। अरे गोपी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तुम मन जय श्री कृष्ण। अभी मन नहीं उसका। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ಓಕೆ ಅಕ್ಷತಾ ದೀದಿ, ದೆನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸರಿ, ಮಂಗಳ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಸಲುವಾಗಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅಶುಭಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್.